الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرست رہنے کے فارمولے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کے بیک ٹائٹل پر شائع ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نئے مضامین کا مجموعہ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تندرست رہنے کے فارمولے پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عبادت کے لیے اچھی صحت دے اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ عام طور پر 80% امراض پیٹ کی خرابی، زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے گلے سڑے چپس، ٹافیوں، چاکلیٹوں، کباب، سموسوں اور ہوٹلوں کے غیر معیاری کھانوں کے بجائے موسمی پھلوں، ڈرائی فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کیجیے۔ نیز کھانا گھر کا کھائیے۔ عام طور پر گھر کا پکا ہوا کھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں تیل، ویجیٹیبل گھی بکثرت استعمال ہوتا ہے ان گھروں میں دل کے امراض وغیرہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ طبی تحقیقات کے مطابق دل کے امراض، فالج، برین ہیمریج عام طور پر تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اضافی نمک کے استعمال سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی طرح کے آئٹمز کے ذریعے اضافی نمک استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا سردیوں میں عموماً ابلے ہوئے انڈے نمک لگا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروری غذا کے علاوہ مختلف نمکین بیج، نٹس وغیرہ کے ذریعے یا زیادہ کھانا کھانے کے ذریعے پیٹ میں زیادہ نمک پہنچانے سے گردوں کو نمک نکالنے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نمک گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ گردوں کو امراض کی طرف لے جاتا اور بالآخر انہیں فیل کر دیتا اور ڈائلیسس کی نوبت آ جاتی ہے۔ نمک کم استعمال کیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی آتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ برین ہیمریج ہو جاتا اور جان پر بن جاتی ہے۔ وزن زیادہ ہونے، تیل، گھی اور تلی ہوئی چیزوں کو بکثرت استعمال کرنے سے بھی عام طور پر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی میٹھی چائے زیادہ پینے یا زیادہ مٹھاس کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ گھروں میں جو ڈشیں پکتی ہیں ان میں عموماً مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ ڈبل ٹرپل چینی ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ شوگر اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکروں میں بارہا میں اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہوں تاکہ امت کو نفع ہو۔ الحمدللہ ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے میں صحت کے بارے میں مفید باتیں سن کر عمل کرتی ہوگی، ان کا کچھ نہ کچھ احتیاط کا ذہن بنتا ہوگا۔ لہذا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے احتیاط کیجیے۔ صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم نماز میں بھی دل لگے گا، روزے بھی رکھ سکیں گے اور دوسری عبادات بھی اچھے انداز سے ادا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ اور سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ اگر شوگر ہائی ہوگی، خون میں کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہوگا، طرح طرح کی بیماریاں اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے تو بدن میں سستی ہوگی اور دین کی خدمت اور دنیاوی کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مضمون
5 रबीउल अव्वल 1439 सिने हिजरी के मदनी मुज़ाकरे की मदद से तैयार करके अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया से मज़ीद मशवरे लेकर पेश किया जा रहा है। इस मज़मून की तिब्बी तफ्तीश मजलिस तिब्बी इलाज के डॉक्टर कामरान इसहाक अत्तारी ने फरमाई है। ताज़ा हवा की अहमियत। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा फ्रेश एयर से मर जाते हैं। जिन घरों की खिड़कियां गर्दो गुबार डस्ट के खौफ से हर वक्त बंद रखी जाती हैं, उनमें धूप और ताज़ा हवा नहीं पहुंच पाती। तरह तरह की जरासीम परवरिश पाते और खूब बीमारियां फैलाते हैं। लिहाजा रोज़ाना दिन का अक्सर वक्त खिड़कियां विंडोज़ खुली रखनी चाहिए। हर कमरे में आमने सामने 2 खिड़कियां इस तरह बनवाई जाएं कि एक से ताज़ा हवा दाखिल हो और दूसरे से बाहर निकलती रहे। सिर्फ एक खिड़की खुली रखना काफ़ी नहीं होता। अगर आमने सामने 2 खिड़कियां ना हो तो फिर खिड़की और दरवाजे की ऐसी तरकीब हो कि एक तरफ से हवा दाखिल हो और दूसरी तरफ से खारिज। एग्जॉस्ट फैन की अहमियत और एहतियातें। बैतुल खला टॉयलेट्स और बावर्ची खाने यानी किचन बल्कि ज़रूरतन कमरे में भी एग्जॉस्ट फैन लगवाया जाए, मगर प्लास्टिक का सिर्फ 4 इंच वाला मुन्ना सा नहीं बल्कि मुनासिब साइज वाला लोहे का हो। मसलन घरेलू बावर्ची खाने में 12 इंच का लोहे का एग्जॉस्ट फैन मुनासिब है। प्लास्टिक वाला देरपा नहीं होता और हवा भी निस्बतन कम उठाता है। एग्जॉस्ट फैन वाली पूरी दीवार में बल्कि चारों तरफ कहीं एक मामूली सी दरार भी खुली ना हो। अगर सिर्फ दरवाजे से हवा खींचने की तरकीब रही तो कमरे की हवा भी साफ होती रहेगी। ऐसी सूरत में ज़रूरतन दरवाज़ा पूरा या थोड़ा सा खुला रखना होगा ताकि कमरे वगैरह की हवा बाहर निकले और दरवाजे से ताज़ा हवा दाखिल हो सके, वरना एग्जॉस्ट फैन ही सुस्त चलेगा। कमरा बड़ा हो तो 18 इंच और हस्बे ज़रूरत 24 इंच का एग्जॉस्ट फैन भी लगवाया जा सकता है। अगर बड़ा हाल हो तो ये सूरत भी हो सकती है कि आमने सामने 2 बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगवाए जाएं। एक हवा के रुख मसलन पाकिस्तान में मगरिब यानी वेस्ट यानी किबले की जानिब वाली दीवार में इस तरह भी लगाया जा सकता है कि बाहर की हवा अंदर लाए और सामने वाला अंदर की हवा बाहर खारिज करे। इंद ज़रूरत यानी ज़रूरतन 2 से ज़ायद एग्जॉस्ट फैन भी लगाए जा सकते हैं। जब ये फैन चल रहे हों उस वक्त अगर चारों तरफ खिड़कियां वगैरह बंद रखी जाएं तो इस सूरत में इंशाअल्लाह हब्स यानी घुटन भी नहीं होगा और बड़े कमरे या हॉल की फ़ज़ा साफ हवा की फराहमी के सबब ठंडी रहेगी। अगर एग्जॉस्ट फैन की गोलाई के अतराफ में जगह खुली रही या दरार और खिड़कियां बंद ना की गई तो एग्जॉस्ट फैन चलने की सूरत में हो सकता है खातिर खा नतीजा हासिल ना हो। अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज भी है और इसकी धूप यानी सनलाइट में कसीर फ़वाइद रखे गए हैं, जिसमें इंसानी की सेहत के लिए धूप का अहम किरदार है। एक कहावत है, जिस घर में सूरज दाखिल नहीं होता उसमें डॉक्टर दाखिल होता है। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा से मर जाते हैं। सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज जब इंसानी जिस्म पर पड़ती हैं तो खाल में सोया हुआ विटामिन डी बेदार होकर मुतहर्रिक यानी एक्टिव होता और विटामिन डी में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है, जो कि आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को खून के अंदर जज्ब करने में मदद देता है और ये दोनों चीज़ें हमारी हड्डियों की सही नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सूरज की वो शुआएं जो बंद खिड़कियों के शीशे से पार होकर इंसानी जिस्म तक पहुंचती हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट शुआएं नहीं होती जो सोए हुए विटामिन D3 को बेदार करके कारामद बना सके। 6 माह से 2 साल की उम्र के दरमियान बच्चों की हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। अगर हड्डियों की सही नशोनुमा न हो तो उनमें रिक्स नामी बीमारी पैदा होती है,
जिस की सबसे बड़ी वजह तंग महल्लों और छोटी छोटी गलियों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों के बंद घरों में रिहाइश है कि जहां सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं, अल्ट्रा वायलेट रेज सही तौर पर इंसानी जिस्म तक नहीं पहुंच पाती और नतीजतन बच्चा उस बीमारी का शिकार हो सकता है। बच्चों को आइंदा की मुसीबतों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि 1 या 2 माह की उम्र ही से मुनासिब धूप मुहैया की जाए। नीज 4 माह की उम्र से ग़िज़ा में अंडे की जर्दी भी इस्तेमाल करवाई जाए। विटामिन D3 की कमी की वजह से कूल्हे की हड्डी की सही नशोनुमा नहीं होती और ये बजाय फैलने के सिकुड़ जाती है, जिससे औरत को बच्चे की विलादत के वक्त तरह तरह की परेशानियों का सामना होता है और आखिरकार ऑपरेशन करना पड़ता है। धूप हासिल करने का तरीका। तुलू आफ्ताब के फौरन बाद और गुरूब आफ्ताब के आखिरी लम्हात में कम से कम 12-12 मिनट के लिए मौसम के लिहाज से वक्त में कमी बेशी करके बच्चे को ऐसी जगह लिटाइए या बिठाइए जहां मुकम्मल धूप आती हो। हर उम्र में धूप खाना ज़रूरी है, लिहाजा इन्हीं औकात में हर एक को इतनी देर तक मुकम्मल धूप में रहना चाहिए कि खाल गर्म हो जाए। बयान करदा औकात बेहतरीन है, अगर ना बन पड़े तो दिन भर में किसी भी वक्त में कुछ ना कुछ धूप हासिल कर लेनी चाहिए। अगर छाँव में हो और धूप आनी शुरू हो जाए तो कुछ धूप और कुछ छाँव में मत बैठिए, बल्कि वहाँ से हट जाइए, मुकम्मल धूप में आ जाइए या मुकम्मल छाँव में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में अगर कोई साए में बैठा हो और उस पर से साया हट जाए और उसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ हिस्सा साए में हो जाए तो उसको चाहिए कि वहाँ से उठ खड़ा हो। मूंगफली पीनट के फवाइद। सर्दी का मौसम जारी है। सर्दी से बचने के लिए जहां गर्म कपड़ों का इस्तेमाल होता है, वहीं तरह तरह के पकवान और खुश्क मेवों ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन मेवा जात में से एक मूंगफली भी है। मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन उसका शुमार मेवा जात में ही होता है। मूंगफली शौक से खाई जाती है, नीज इसका तेल भी निकाला जाता है जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक और अदविया वगैरह में शामिल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा, भूनकर और उबालकर इस्तेमाल करते हैं। नीज इसे मुख्तलिफ पकवानों, बिलखुसूस मीठे पकवानों, स्वीट डिशेस में शामिल किया जाता है। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन B1, B6 और फास्फोरस शामिल होते हैं। मूंगफली मुकव्विए आसाब यानी पट्ठों को मजबूत करने वाली है। मूंगफली दुबले पतले और कमज़ोर अफराद के लिए मुफीद है। मूंगफली में मौजूद फौलाद यानी आयरन खून के नए खलिए यानी सेल्स बनाने में मददगार है। मुट्ठी भर मूंगफली काफ़ी होती है। मूंगफली में मौजूद विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ग़िज़ाई लिहाज से सेब, चुकंदर और गाजर से भी ज़्यादा हैं। एहतियात: हामिला मूंगफली खाने से परहेज करें, एलर्जी होने का खतरा है। खारिश होने की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल ना किया जाए। मदनी मशवरा: कच्ची मूंगफली के बजाय भुनी हुई मूंगफली खाई जाए। मछली के फायदे: मछली इंसानी सेहत के लिए निहायत अहम ग़िज़ा है। इसमें आयोडीन होता है जो कि सेहत के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। इसकी कमी से जिस्म के गुदूदी निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। गले के अहम गुदूद थायराइड में सुक्म यानी खामी पैदा होकर जिस्मानी निज़ाम में बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं। मछली बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने वालों की उम्रें लंबी होती हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक सर्दी से होने वाली खांसी का मछली से बेहतर कोई इलाज नहीं। दिल के मरीजों के लिए मछली बहुत ही फायदेमंद है। माहिरीन का कहना है
हफ्ते में कम से कम 2 बार तो ज़रूर मछली खा लेनी चाहिए। ग़िज़ा में मछली का ज़्यादा इस्तेमाल मसाने का कैंसर बढ़ने से रोकने की भरपूर सलाहियत रखता है। मछली के सर की यखनी, जिसे शोरबा या सूप भी कहते हैं, बीनाई की कमजोरी और दीगर कई अमराज के लिए फायदेमंद है। बाकायदगी से ये यखनी पीने से आंखों के चश्मे उतर सकते हैं। मछली के सर की यखनी यानी सूप फालिज, लकवा, इरकुन निसा यानी लंगड़ी का दर्द जो कि चड्डे से लेकर पांव के टखने तक पहुंचता है, आसाबी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी, कबल अज वक्त बुढ़ापे, जोड़ों के पुराने दर्द और जिस्मानी और आसाबी खिंचाव और कुव्वत हाफिजा बढ़ाने के लिए निहायत मुफीद है। ऐसे लोग जो अपनी याददाश्त बिल्कुल खो चुके हों या जिनकी याददाश्त ख़त्म होने के करीब हो, वो ख्वाह जवान हों या बूढ़े, ये यखनी यानी सूप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर गर्मी के मौसम में नामुवाफिक महसूस करें तो सर्दियों में इस्तेमाल करें। अगर बयान करदा तमाम बीमारियों में से कोई मरज़ नहीं, तब भी अगर कुछ अरसा मछली के सर का सूप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। एक तबीब का कहना है, हिंद की रियासत केरला के एक साहिब ने बैरून मुल्क मुझे बताया कि केरला के लोग रियाजी, जिसमें हिसाब, अलजबरा और ज्योमेट्री वगैरह शामिल होता है, साइंस और दुनिया के दीगर मुश्किल तरीन उलूम में काफ़ी बाकमाल होते हैं। मैंने इस कमाल की वजह पूछी तो कहने लगे, मछली और मछली के सर का इस्तेमाल। मदनी बहार, जामिअतुल मदीना फैज़ान बिलाल बाबुल मदीना कराची दर्जा सालिसा के तालिबे इल्म हमजा बिन आबिद का बयान है कि मेरी बीनाई कमज़ोर थी और 2.5 नंबर का नज़र का चश्मा इस्तेमाल करता था। जब मैंने मकतबतुल मदीना के रिसाले मछली के अजायबात में बयान करदा नुस्खे मछली के सर की यखनी बीनाई की कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद है, बाकायदगी से ये यखनी पीने से आँखों के चश्मे उतर सकते हैं, पर पाबंदी से अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीनाई बिल्कुल ठीक हो गई और अब मैं मुकम्मल तौर पर ऐनक से छुटकारा हासिल कर चुका हूँ। बुढ़ापे बल्कि हर उम्र में सुखी रहने के फार्मूले। कहा जाता है, यकपीरी व सद ऐब यानी बुढ़ापा 100 बीमारियों के बराबर है। वाकई बूढ़े अफराद बेचारे बहुत सारी आजमाइशों का शिकार रहते हैं। बुढ़ापे बल्कि ज़िंदगी को किसी हद तक पुरसुकून गुजारने के लिए इन गुजारिशात पर अमल करना इंशाअल्लाह मुफीद हो सकता है। नंबर 1, अगर जवानी ही से मैदा, चिकनाई और मिठास वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो जिंदा बच जाने की सूरत में बुढ़ापे में सहूलत हो सकती है। हाँ, अगर शुगर हाई या लो होता हो तो मिठास के ताल्लुक से डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना होगा। नंबर 2, हमेशा खाने में तेल मसाले की मिकदार कम रखिए। नंबर 3, दूध का इस्तेमाल हर उम्र में मुफीद है और कमोबेश 25 साल की उम्र तक खालिस दूध का इस्तेमाल बुढ़ापे में हड्डियों वगैरह के अमराज से बचा सकता है। नंबर 4, हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाइए और दांत का काम आंत से मत लीजिए। नंबर 5, कुछ भूख बाकी होने की सूरत में हाथ खींच लीजिए और खूब पेट भरकर खाने की आदत निकाल दीजिए। नंबर 6, सादा ग़िज़ा खाइए, सब्जियां और फल बकसरत इस्तेमाल फरमाइए। गोश्त का सालन बहुत ज़्यादा मिकदार में मत खाइए। नंबर 7, अगर घर में अक्सर दिन गाय या बकरे का गोश्त पकता हो तो हत्तल इम्कान सिर्फ एक आध दरमियानी बोटी खाने की आदत बनाइए, बहुत ज़्यादा बोटियां मत खाइए। नंबर 8, जब तक खूब भूख ना लगे उस वक्त तक खाना मत खाइए। नंबर 9, चीनी वाले फ्रूट जूसेस इस्तेमाल ना फरमाइए। नंबर 10, आइसक्रीम, ठंडी बोतलों, तली हुई ग़िज़ाओं,
पकौड़ों, कबाब, समोसों, शादी ब्याह की दावतों के लजीज खानों, पराठों, टॉफियों, कोको चॉकलेट, सिगरेट नोशी, गुटखा, खुशबूदार सुपारी, तंबाकू वगैरह से बचिए। इंशाअल्लाह सेहत अच्छी रहेगी। 11, चाय का इस्तेमाल कम कीजिए। जो पिए इसमें भी हो सके तो चीनी की जगह देसी गुड़ या शहद डालिए। नंबर 12, मीठी ग़िज़ाएं देसी गुड़ या शहद में बनाइए, मगर इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ना हो। 13, रोज़ाना एक साथ कम से कम आधा घंटा पैदल चलिए और किसी फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से हर रोज़ एक्सरसाइज भी करते रहिए। नंबर 14, जिनकी उम्र बड़ी हो गई हो वो भी अपने हाथ से घर का काम काज करते रहें, मसलन झाड़ू पोछा लगाना, खिड़कियों दरवाज़ों वगैरह का गर्द गुबार झाड़ना वगैरह। बाजार से सौदा सलाब भी खुद ही ले आएं। इंशाअल्लाह बदन के पट्टे यानी मसल्स वगैरह अकड़ने से बचेंगे और अल्लाह पाक ने चाहा तो सेहत में बेहतरी रहेगी। 15, अल्लाह व रसूल की नाराज़ी से खुद को बचाने और बुढ़ापा सेहतमंद गुजारने के लिए शुरू ही से गुनाहों की बीमारी से खुद को बचाते रहिए। हज़रत अबू तय्यब तबरी रहमतुल्लाहि अलैह ने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई, लेकिन आखिर दम तक जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त व तवाना रहे। बुढ़ापे में इस कदर सेहतमंद रहने का राज पूछा गया तो फरमाया, मैंने कभी जिस्म के किसी भी हिस्से से अल्लाह करीम की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह करीम अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमें अपनी सेहत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। खून टेस्ट करवा लीजिए। सेहतमंद को हर 6 माह बाद और मरीज को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कुछ टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ये सोचकर टेस्ट ना करवाना कि अगर कुछ निकला तो इलाज और परहेज करना पड़ेगा, दानिशमंदी नहीं, क्योंकि बीमारी से लापरवाही बरतने से मसला हल नहीं होता। खून के ये टेस्ट करवाने मुनासिब है। नंबर 1, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। इस टेस्ट के लिए 12 ता 14 घंटे खाली पेट होना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रोज़ा रखकर नमाज असर के बाद टेस्ट करवा लीजिए, वरना रात जल्दी खाना खा लीजिए और सुबह नाश्ते से कबल करवा लीजिए। नंबर 2, शुगर ग्लूकोज। नंबर 3, यूरिक एसिड। नंबर 4, सीरम यूरिया क्रिएटिनाइन। इससे गुर्दे में अगर किसी किस्म की खराबी या फेल होने का खतरा शुरू हो रहा हो तो मालूम हो सकता है और बर वक्त इलाज की तरकीब बन सकती है। इस पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ गुर्दे फेल होने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 5, यूरिन DR। ये भी गुर्दों का अहम टेस्ट है। नंबर 6, ब्लड CP ब्लड। ये खून का बुनियादी टेस्ट है। नंबर 7, SGPT जिगर के हवाले से अहम और इब्तिदाई टेस्ट है। रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा दीजिए। रिपोर्ट ख़राब आए तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अमल कीजिए। वज़न कितना होना चाहिए? कद के मुताबिक मर्द के लिए फ़ी इंच 1 किलो वज़न मुनासिब है। मसलन 5.5 फीट के मर्द का वज़न तकरीबन 66 किलो, जबकि 5.25 फीट की औरत का वज़न तकरीबन 59 किलो होना चाहिए। मदनी फूल 100 दवा की 1 दवा परहेज़ है। मालूमात के लिए फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल के बाब आदाब ताआम के सफ़ा 619 ता 625 का मुताला कीजिए। मिसवाक के फ़ायदे और आदाब। मिसवाक अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मिसवाक की सुन्नत पर अमल करना न सिर्फ अजर व सवाब के हुसूल का ज़रिया है, बल्कि इसकी बदौलत दुनिया के मुतअद्दिद फ़ायदे भी हासिल होते हैं। आइए
مسواک کے چند فوائد و آداب سنیے اور فوائد پانے اور آداب پر عمل کرنے کی نیت فرمائیے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور رب کریم کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک سے متعلق چند آداب۔ ہو سکے تو اپنے کرتے میں سینے پر دائیں جانب 2 جیب بنوائیے اور دل کی جانب یعنی لیفٹ سائیڈ والی جیب کے برابر میں مسواک رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جیب بنوا لیجیے۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مسواک شریف گویا سینے اور دل سے لگی رہے گی۔ مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا سنت ہے۔ اگر اسے کھڑا نہیں کرتے، یوں ہی نیچے گرا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والے کے لیے جنون یعنی پاگل پن کا خطرہ ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مسواک کو زمین پر رکھے اور مجنون یعنی پاگل ہو جائے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ جس طرح دینی کتاب کو زمین پر رکھنا ادب کے خلاف ہے، اسی طرح مسواک کو بھی زمین پر نہ رکھا جائے۔ مسواک کو اونچی جگہ جہاں مٹی کچرا وغیرہ نہ ہو لٹا کر رکھنے میں حرج نہیں۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ یوزڈ مسواک کے ریشے نیز جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اسے پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے۔ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ کسی بھاری چیز کے ساتھ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مختلف مقامات پر باکس لگائے جاتے ہیں۔ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسواک کے ریشے یا مستعمل مسواک اس طرح کے کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال دی جائے۔ اللہ کریم ہمیں ادائے سنت کی نیت سے مسواک کو اپنانے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، جتنا ہو سکے اپنی بھویں آئیبرو پانی سے تر رکھیے۔ چولہے کا استعمال کم کر دیجیے۔ ایک چھوٹا تولیہ ٹاول گیلا کر کے سر پہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیے۔ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن ڈھانپ کر یا ہو سکے تو چھتری لے کر نکلیے۔ دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ فوم کے گدیلے پر سونے سے پرہیز کیجیے، ورنہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجیے۔ ستو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ استعمال کیجیے۔ کدو شریف، بینگن، چقندر، مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجیے۔ کھانوں میں گرم تاثیر والے مسالوں کے بجائے ٹھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے ہلدی، دار چینی، ٹماٹر، دہی، آلو، ہرا دھنیا وغیرہ استعمال کیجیے۔ گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیے۔ چاول کا استعمال بڑھا دیجیے۔ پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے۔ دہی کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے۔ آم، آڑو، خوبانی، امرود، خربوزہ، تربوز، ناریل نیز دیگر موسمی پھلوں کا استعمال کیجیے۔ بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کیجیے۔
हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अमल करें। गर्म ग़िज़ाओं, ज़्यादा मिठास वाले शरबत, खूब मीठी डिशों, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा घी, तेल वाले खानों और देर में हजम होने वाली ग़िज़ाओं नीज कैफीन वाली अशिया मसलन चॉकलेट वगैरह का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। ठंडी तासीर वाले इत्रियात मसलन शमामतुल अंबर, हिना, गुलाब, संदल, मोतिया, खस, केवड़ा, चंपा वगैरह इस्तेमाल कीजिए। मुश्क, कस्तूरी, ऊद, अंबर, ज़ाफ़रान वगैरह गर्म तासीर वाले इत्रियात सर्दियों में इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। दिन में 2 मरतबा नहाना मुफीद तर है। सोशल मीडिया और नाकाबिले तलाफी नुकसानात। जदीद टेक्नोलॉजी ने अगरचे हमारी कई मुश्किलात को आसान कर दिया है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो जदीद टेक्नोलॉजी का अच्छा और ज़रूरी इस्तेमाल करने के बजाय इसका बुरा और बेजा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया भी जदीद टेक्नोलॉजी ही के तोहफे हैं। लोगों को इन्हीं में मसरूफ़ रखने के लिए दिन ब दिन इसमें नई नई चीज़ों का इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त जिस तरह मुआशरा इंटरनेट और सोशल मीडिया की गैर ज़रूरी, फजूल और बुरी सरगर्मियों के लपेट में है, तो मुस्तकबिल में उम्मत को हर फील्ड में माहिरीन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे डॉक्टर्स, साइंसदान, मुहक्किकीन और मुफक्किरीन आगे चलकर शायद नापेद हो जाएं। मादअल्लाह हो सकता है कि शायद अंधों की तादाद बढ़ जाए। नज़र के चश्मे ज़्यादा बिकने की वजह से शायद बहुत महंगे हो जाएं। लोग दूसरे धंधे छोड़कर शायद इसी कारोबार की तरफ आ जाएं। हो सकता है कि आई स्पेशलिस्ट की तादाद भी बढ़ जाए, इसलिए कि स्टूडेंट्स के उम्दा दिमाग और नाजुक आंखें अब सोशल मीडिया पर जमे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बहलाने के लिए उनके हाथों में मोबाइल, टैबलेट वगैरह दे दिए जाते हैं। मजहबी माहौल रखने वालों की भी एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया में लगी हुई है। ना इस्लाह करने वालों के पास वक्त है कि मुताल्लिकीन की इस्लाह करें, और ना ही छोटों के पास टाइम है कि बुजुर्गों की बारगाह में आकर कुछ फैज़ हासिल कर लें। अच्छे और मंझे हुए आलिमों, मुफ्ती साहिबान सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम नहीं देते, बल्कि वो इस डर से बच कर रहते हैं कि अगर इसको मुंह लगाया तो गले पड़ जाएगा, उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ लेगा और फिर इल्मी मशागिल जारी रखने में दुश्वारी होगी। अवाम में भी जो सोशल मीडिया में मसरूफ़ रहते हैं, तो वो गौर कर लें कि इसके सबब न नमाज में दिल लगता होगा, न तिलावत और औराद व वज़ाइफ के लिए वक्त मिलता होगा। लोग मजबूरन नौकरी करने जाते तो होंगे, मगर काम के दौरान भी सोशल मीडिया पर लगे होते होंगे। ड्राइविंग के दौरान इसके इस्तेमाल के सबब हादसात भी होते हैं, जिससे लोग माजूरी का शिकार होते और बसा औकात अपनी कीमती जानों को ज़ाया कर बैठते हैं। जिनकी सिक्योरिटी की नौकरी होती है, वो भी दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया पर लगे होते हैं। यही वजह कि कई इदारों में मुलाजमीन से दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन लेकर जमा कर लिए जाते हैं। ए आशिकान रसूल, सोशल मीडिया और नेट से जान छुड़ाइए और अपनी दीनी व दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाइए। नीज़ अपनी पैदाइश के मकसद यानी अल्लाह पाक की इबादत में भी कोताही मत कीजिए। मुमकिन हो तो सादा मोबाइल से काम चलाइए। अगर एंड्रॉयड मोबाइल रखना और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना ही हो, तो उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए। यूँ इसके कसरत इस्तेमाल के सबब होने वाले नुकसानात में कमी लाइए। सुलझे हुए और समझदार लोग ऐसा ही करते हैं। मसलन असर और मगरिब के दरमियान या इशा की नमाज के बाद, या जिसको जो वक्त मिलता है, तो वो उसमें कुछ देर अच्छी नीयतों के साथ सोशल मीडिया को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल कर ले। मुकर्ररा वक्त के बाद इससे खुद को दूर कर ले और फिर आइंदा कल इस्तेमाल करने का ज़हन बना ले। लेकिन सोशल मीडिया के मतवालों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें हर वक्त एक गुदगुदी और बेकरारी सी होती है कि देखूं तो सही किसका पैगाम आया है।
مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے پختہ ارادے کے ساتھ چلا، لیکن ایک دم موبائل فون کی گھنٹی بجی اور کسی کا آڈیو پیغام یا پوسٹ آ گئی۔ اب اگر کسی عام شخص کا ہے تو صبر ہو جائے گا کہ چلو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اگر کسی خاص بندے کا پیغام یا پوسٹ ہے تو اب یہ اسے ضرور دیکھے گا یا اس آڈیو پیغام کو سننے میں لگ جائے گا، اور اس دوران جماعت بلکہ بعض کی معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تندرست رہنے کا نسخہ۔ حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی ادب کے مطابق کھا لے، اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آ سکتی، یعنی وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ پوچھا گیا ادب کیا ہے؟ فرمایا بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے۔ نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے، سچ یہی ہے سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی 1/3 کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔